اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیے؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے۔ اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتا ہے، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس سے ملتی جلتی آیت 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرث، جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ کیا طلب کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کی دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، اور جو صرف ہم سے دنیا طلب کیا تو اسے دنیا تو دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں مانگنے میں ہم سب سے زیادہ کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ تقریباً سب دنیا ہی ہم مانگتے ہیں۔ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ اور قرآن کی صاف بات ہے، جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر۔ کبھی اونلی ون دنیا کی چیزیں طلب کرنا، صرف اور صرف دنیا طلب کرنا، تو یہ مسلمان کو اور مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ دعا کریں کہ دکان اچھی چل جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسوں میں برکت ہو جائے، دعا کریں، دنیا ہی تو مانگا۔ اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دیں، اولاد دنیا ہے۔ اچھی بیوی مل جائے، دنیا ہے۔ جائیداد مل جائے، دنیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے۔ وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا، جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت۔ وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا۔ دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں، سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات۔ وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا۔ یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہیں اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں ملتا ہے، نہیں ہوتے؟ اچانک موتیں آئی، صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ مانگو میرے عزیزوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے، لمبا عرصہ۔ یہاں ایک حدیث میں یہ بھی سنا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بھی شاید میں نے بتایا ہوگا، 2 راستے ہیں۔ دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے،
दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ दे है। दोनों की ये मंजिल यानी रास्ते में बता रहा हूं। दोज़ख उसका रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन मंजिल बहुत खराब है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत हसीन है। मर्जी तुम्हारी, सिर्फ अगर तुम्हें रास्ता ही चाहिए तो दोज़ख के रास्ते पर चलते हुए जाओगे, आज या कल कट जाएगा रास्ता, और जब मंजिल पहुंचोगे फिर आग के शोले तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो कितने साल तक वो भी नहीं मालूम। हाँ, जन्नत का रास्ता कांटों भरा तो है, तकलीफें तो हैं, नमाजों की पाबंदियां हैं, हलाल खाना है, और तुम्हें शरीयत इस्लामिया के दायरे में रह करके अमल करना है। ये सख्त तो लगता है, कठिन तो है, लेकिन जैसे ही मंजिल आएगी सारी थकान उतर जाएगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब जन्नत मंजिल मिल जाए, अब आपके ऊपर फैसला है, सिर्फ रास्ता तुम्हें आराम का चाहिए या मंजिल अच्छी चाहिए, ये देख करके चलो। अब उसकी मिसाल ऐसी है कि आपको मैं दुनियावी तरीके से एक मिसाल बताऊं। 1 किलोमीटर का एक रास्ता है, 2 रास्ते यहां पर बने हुए हैं, 1 किलोमीटर के 2 रोड हैं। एक रोड कंकरियों से भरा हुआ है, लेकिन जहां ये रोड एंड होता है, खत्म होता है, एक बहुत ही हसीन बागीचा है जिसमें फल हैं, नदी है, बहुत ठंडी हवाएं हैं, लेकिन रास्ता पूरा कंकरियों से भरा हुआ है, 1 किलोमीटर चलना है। एक दूसरा रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई कंकरी नहीं, कोई कांटे नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां ये खत्म होता है मंजिल बहुत भयानक है। वहां सड़ी हुई बदबूएं आ रही हैं, कांटे बिखरे हुए हैं और लाशें हैं, बदबू भरी हुई है। मुझे बताओ, अकल रखने वाला कौन सा रास्ता इख्तियार करे? वो कंकरियों भरा रास्ता चुनने वाला अकलमंद है, इसलिए कि चलना ही तो है 1 किलोमीटर, उसके बाद तो हसीन बागीचा मेरा इस्तकबाल कर रहा है। और बेवकूफ वो बंदा है जो सिर्फ रास्ते को देखा कि ये हसीन लग रहा है, आराम का लग रहा है, चल पड़ा, लेकिन मंजिल बहुत ही भयानक पा लिया। सेम यही मिसाल जन्नत और दोज़ख की है। वही अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, जिसने सिर्फ हमसे दुनिया मांगी हम उसको दुनिया दे देंगे। कुफार और मुशरिकीन को अल्लाह दुनिया देता है, तुम्हें भी देगा, लेकिन आखिरत में तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा जाएगा। और जिसने हमसे आखिरत मांगी, अल्लाह फरमाता है उसे दुनिया में बरतने को भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा। तो फायदे में यही रहेंगे। इसीलिए हमेशा एक दुआ ये करो, मैं बेहतरीन दुआ आपको बताता हूं जो औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ थी। क्या मांगना चाहिए जिंदगी में क्या मांगना चाहिए? यानी मांगने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। क्या मांगे? हम अपने लिए गाड़ियां मांगे, घोड़े मांगे, औलाद मांगे, बीवियां मांगे, बच्चे मांगे, प्रॉपर्टी, जायदाद, बादशाह का तख्त, क्या चीज मांगना चाहिए? औलिया कामिलीन जो चीज मांगते थे वो सबसे बड़ी दुआ ये है, वो यूं कहते थे कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा, बस तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका हो जाए फिर बचा क्या? तो दुआ हमेशा ये करो कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा, यानी तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे से राजी हो जाए उसी के मुतालिक तो कहा है शायर ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने रहमत को खोल देता है। कुरान में है लहुम मा यशाऊन फीहा, ये वो बंदे हैं जो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है, जो वो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है। वलदैना मजीद, और अल्लाह फरमाता हमारे पास इससे भी ज्यादा है जितना वो चाहते हैं। लेकिन ये औलिया कामिलीन पूरी जिंदगी इस तरह की गुजारते रह गए कि दुनिया में से सिर्फ उतनी चीजें ली जितना जिंदगी गुजारने के लिए काफी थी, बाकी सब वो मांगते रहे अल्लाह ही को, मांगते रहे अल्लाह ही को। एक बहुत ही मुकद्दस जमाअत क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों की 2-3 कैटेगरीज होंगी। जन्नत में जाने वालों की
3 जमातें बख्शे जा चुके हैं, हिसाब किताब हो चुका है, जन्नत का फरमान आ चुका है। एक जमात ऐसी होगी, अल्लाह ताला उनसे फरमाता है, ए मेरे बंदो तुम पर जन्नत हो गई, तुम्हें जन्नत में भेजा जा रहा है, तुम इबादतों में पूरे कंप्लीट थे, बताओ क्यों इबादत करते थे, जन्नत तक कैसे पहुंच गए। वो कहते हैं, ए अल्लाह हमें जन्नत की नियामतें जब से हमने सुना था बड़ा लगाव था कि उस जन्नत में जाएं। ये भी मोमिन की शान है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। जन्नत तेरी बड़ी हसीन और जमील है, हमने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, इसलिए उसमें दाखिल होने के लिए खूब जुस्तजू करते थे, कोई नमाज ना छूटने पाए, हर गुनाह से बचते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है तुमने अच्छा किया और तुम्हारे लिए जन्नत हो गई। जिसकी तलब में पूरी जिंदगी मेहनत करते थे वो चीज तुम्हें मिल गई। एक जमात गई जन्नत में, दूसरी जमात है, उनसे पूछा रब ताला ने, तुम क्यों इबादत करते थे? वो कहते, मौला तेरी दोज़ख से डर बहुत लगता था, हमने जब कुरान में पढ़ा या हदीस से सुना कि दोज़ख के अज़ाबात इतने सख्त तरीन हैं कि उसको बंदा नहीं संभाल सकता, तो हमें डर बहुत लगता था। उस डर की वजह से हम इबादतों की पाबंदी करते थे और कोई गुनाह होने नहीं देते थे, नेकियां करते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ मेरे बंदो, जहन्नम के खौफ से तो तुम इबादत गुजार तो रहे, तुम्हारे लिए भी जन्नत है। तीसरी एक जमात थी मुखलिसीन की जमात, इनसे रब ताला फरमाता है, तुम क्यों इबादत करते थे? तुम्हारे लिए भी जन्नत का परवाना आज सुना दिया गया, तुम क्यों इबादत करते थे? वो कहते हैं, ए मौला हमें न जन्नत की ख्वाहिश थी और न हमें दोज़ख के मुतालिक कोई फिक्र थी, हम तो सिर्फ इसलिए इबादत करते थे कि तू हमसे राजी हो जा, हम तुझको चाहते थे, तेरा फरमान था और हम उस पर अमल करते थे, बस हम जन्नत की तलब में या दोज़ख के खौफ से नहीं, ऐ अल्लाह हम खालिस तेरे लिए करते थे। रब ताला फरमाता है कि ऐ बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ जन्नत में, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। हाय कैसी जमात होगी, जन्नत का परवाना सुना दिया गया, वो जन्नत में नहीं जा रहे हैं। वो कहेंगे, ऐ मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो दूसरे हमको ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए ही इबादत करते थे, बोले कुछ और हो। रब तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हो गया और बदले में तुम्हें जन्नत मिल रही है। वो कहते, मौला बदला नहीं चाहिए, बस तू राजी हो जा, बदला नहीं चाहिए, तू राजी हो जा। यहां तक के रिवायात में आता है कि फरिश्तों को हुक्म होगा, इनको बेड़ियां डालो और जन्नत में ले जाओ, इनको खींच करके जन्नत में ले जाओ। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह से अगर कुछ मांगते थे तो अल्लाह ही को मांगते थे, तू हमारा हो जा। मेरे अजीजों, आज के इस आयत करीमा से भी यही सीखो कि मांगने के लिए हजारों चीजें तुम्हारे पास हैं, अक्लमंद बंदा वो है जो अल्लाह से अल्लाह ही को मांग ले, ऐ अल्लाह तू मेरा हो जा। और हमने बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों में देखा है, बल्कि हदीस आपको मैं बता दूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। यहां तक कि हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी कहते हैं फरमान अल्लाह का है, जुबान नबी कौनैन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन वो कलमे अल्लाह के। उस हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, एक बंदा मुझसे करीब होता है, इतना करीब होता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। कौन कह रहा है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल। रब ताला फरमाता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ये हदीस कुदसी में। तो बंदा अपने आप को इतना करीब करता है, इतना करीब करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल को अपना अमल फरमा रहा है।